तेरी उंगली प्यारे आवे, तेरी उंगली प्यारे आवे, बुरा तो बिना कोई ना फड़े। Now today I am starting with coordinate geometry. I have started coordinate geometry because in 9th class simultaneously coordinate geometry is going on. That is why I have started coordinate geometry. Now today I am starting coordinate geometry. Now in the coordinate geometry we want to study three things. One is the distance formula. First is distance formula. Second is section formula. Third is midpoint formula, and fourth is area of a triangle. Using this coordinate geometry. First of all, let us see this history of coordinate geometry and how the Cartesian coordinates are there. Actually, Rene Descartes has started this coordinate geometry. That is why it is called Cartesian coordinate system. तो अभी क्लास 9 तक पढ़े थे वो देख लीजिए अपना। एक सपोज लेट अस से दिस लाइन इज देयर, देन दिस इज 0. दीज आर द नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, एंड दीज आर द नेगेटिव इंटीजर -1, -2, -3, -4. So these are the integers on the number line. Now let us see this. This is a x-axis. This is a x-axis, horizontal axis. Now suppose one point is here. I say this point is P, and another point is here Q. Anybody who can tell the distance between this PQ? Anybody? Just this point is -3 and this point is 4. Anybody who can tell what is distance between PQ? Hello? Anybody? 7. Very good. 7. Very good. Because this is 3 and this is 4. 7. Okay. Now suppose I have drawn another line here. This is say 0. This is 1. This is 2. This is 3. This is 4. This is 5. This is y-axis. Now this is PQ. I say P instead of PQ. I say it is P. I say it is A. PA distance is here is 4 plus 3 7 units, 7 centimeter or 7 units. If it is in centimeter, it is in. Now this distance I say it is, say this point is Q there. This Q point is at 5 units. Means this AQ equal to 5. This is 7 and this is 5. This is 7 and this is 5. Now what is the length of this PQ? Anybody who can tell? What is distance PQ? 8. Anybody who can tell what is distance? This is 7 centimeter. This is 5 centimeter. What is length PQ? 8. Anybody? How to? स्क्वायर रूट में आएगा क्योंकि हमें लगाना पड़ेगा. We have to apply Pythagoras theorem because these are the perpendicular line. We have to apply Pythagoras theorem. So if we apply Pythagoras theorem, then what happens? This PQ, this h square, means this h square equal to this AP square. H square equal to AP square plus AQ square, means it is 7 square plus 5 square. 7 square equal to 49 and 5 square equal to 25. 5 square is equal to 25. With this 4 and this is what says 7. H square equal to 74 means h equal to root of 74. H equal to root of 74. You are getting it? Everybody getting it? सो दिस इन ये चैप्टर में हमें यही करना है कि हमें एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेना है, एक वर्टिकल एक्सिस लेना है. हॉरिजॉन्टल एक्सिस को जैसे आप एक्स एक्सिस कहते थे, एक्स एक्सिस ही कहना है.
वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस ही फाइंड बोलना है। और उसके बाद क्या करना है, ये जो एपी और एक्यू डिस्टेंस फाइंड करना है। और देन वी हैव टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम एंड देन वी फाइंड दिस h इक्वल टू रूट ऑफ this square plus this square, that is equal to root of 74. Now directly we start with the distance formula. हम क्या करते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं वहां पे जो ये है कुछ स्लाइड बनी है, हाँ यहाँ से देखिए ये देखिए ये हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है ना। This point is P. This point is x1, y1. This point say Q. This is x2, y2. Okay. It means that this length is x1. This is x2. Means this coordinate on x-axis is x1. This coordinate is x2. Let us say this is 1. This is say 5. हाँ? दिस इज 1, ये है 1 है, मान लीजिए 5 है, तो इतना डिस्टेंस कितना रहेगा 5 माइनस 1 ना। 5 माइनस 1 मीन दिस डिस्टेंस इज x2 माइनस x1. दिस डिस्टेंस इज x2 माइनस x1. सो दिस डिस्टेंस इज x2 माइनस x1. दिस डिस्टेंस इज x2 माइनस x1. आई एम टेकिंग दिस एज a. ओके, नाउ दिस इज y1. Why? Because this coordinate of P is x1, y1. This is y1. Means this distance is y1. Suppose this is say 1, then this distance is 1. And another say this is coordinate of this y is y2. This is y2. Suppose this say 3 is there or 4 is there. 4 is there. Means this distance is 4. This distance is 1. It means that this distance is 4 minus 1, that is equal to 3. It means that this distance is y2 minus y1. This distance is y2 minus y1 means this distance is y2 minus y1. But these are the perpendicular to each other, and if we join, this is hypotenuse. If it is hypotenuse, then what happens? This PQ square equal to AQ square, AP square plus AQ square. And if you take square root of this, then PQ equal to square root of AP square plus AQ square. और यदि हमने ये वैल्यू पुट कर दी तो ये आ जाएगा, it is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. चलो, एनी डिफिकल्टी है तो जस्ट पूछ लीजिए. दिस इज व्हाट्स ए डिस्टेंस फार्मूला. एनी डिफिकल्टी? ओके, वेरी गुड. दिस इज डिस्टेंस फार्मूला. अभी ये डिस्टेंस फार्मूला का यूटिलाइजेशन क्या बता दे रहा हूं. लेट मी टेल यू व्हाट इज. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस फार्मूला ठीक तरह लिख लेते. डिस्टेंस फार्मूला क्या है? एक पॉइंट सपोज P है. This P point has coordinate x1, y1, and this Q coordinate is x2, y2. Then distance formula says that this distance PQ means length PQ equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This is what's a distance formula. Now, what is utility of distance formula? For the utility of distance formula, we must know the different type of triangles on the basis of sides. Then, what is meaning of collinear? What are different types of quadrilateral? So, one by one, I am taking the properties of the triangle on the basis of length of sides, then different types of quadrilateral. तो हम ये डिस्टेंस फार्मूला का यूटिलाइजेशन करते हैं सबसे पहले लेंथ फाइंड करने में. अब लेंथ फाइंड करने में, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ क्या बोले, कैसे क्या बोले? हाँ.
So what say distance PQ equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now what is utility of this? इसका यूटिलाइजेशन क्या है? तो पहली बात है कि आप एक एक करके लिख दो. हाँ, लिखे एक. नंबर 1, टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल. कैसे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल आइडेंटिफाई करेंगे? सपोज we have given 3 points are there. Suppose this point A is given, B point is given, and C point is given. And this is say x1, y1, this is x2, y2, and this is x3, y3. So you can find how many distances? 3 distances. Means you can find by distance formula and length AB, BC, and AC. AB, BC, and AC. If all these lengths are equal, then we can say that these are the equilateral triangle. देखिए क्या बोल रहा हूं मैं? सपोज 3 पॉइंट दिए है आपको और 3 पॉइंट दिए है x1, y1, x2, y2, x3, y3. सपोज से it is 3, 4, it is 5, 3, it is 7, 4. So what we do? First of all find AB, then find BC, and then find AC. If these 3 lengths are equal means 3 sides of triangle are equal. Then we can say that these are the sides of equilateral triangle. लिखिए सभी पहले. If 3 lengths by distance formula are equal, then the triangle is equilateral triangle. अभी उसमें क्या हो गया कि 3 में से 2 साइड इक्वल आ गए. मीन्स ABC में से AB लेंथ इक्वल टू BC आ गया एंड नॉट इक्वल टू AC आ गया. इट मीन दैट इट इज नाउ आइसोसेलेस ट्रायंगल. इफ AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू AC आ गया, इट मीन दैट दिस 3 ट्रायंगल्स आर द ट्रायंगल इज स्केलिन ट्रायंगल. क्लियर? मतलब ये 3 लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे. ट्रायंगल के 3 लेंथ फाइंड करेंगे. यदि तीनों के तीनों लेंथ इक्वल है तो हम बोलेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है. तीनों में से 2 इक्वल है और 1 इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे आइसोसेलेस है. और तीनों के तीनों इक्वल नहीं तो देन वी से दैट इट इज वी कैन से दैट इट इज द स्केलिन ट्रायंगल. दिस इज फर्स्ट यूटिलिटी ऑफ दिस डिस्टेंस फार्मूला. अनदर utility of distance formula. Suppose this A is given x1, y1, B is given x2, y2, B is given x2, y2, and C is given x3, y3. Again, we find length AB, BC, and AC. Length AB, BC, and AC. You already know that if the right angle triangle is there, then largest side is hypotenuse. If we suppose this AC is the largest length, suppose AC is largest length, and we do AC square and AB square plus BC square, and if these 2 lengths are equal, means AC square and AB square plus BC square equal, then we can say that this ABC is the right angle triangle, provided that by square of one side equal to sum of square of another side. This is the second utility of this distance formula. किसी को कोई डिफिकल्टी पूछ लीजिए. क्लियर? मतलब आपको ट्रायंगल में 3 साइड है. 3 ही साइड का काम है. पहली बात, हाँ, 3 ही साइड का काम है कि भाई तीनों साइड इक्वल है लेंथ डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करके. तो तीनों साइड इक्वल है तो हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल है. उसमें से तीनों में से 2 इक्वल है तो हम बोलेंगे आइसोसेलेस है. तीनों भी इक्वल नहीं तो हम बोलेंगे इट इज स्केलिन ट्रायंगल. लेकिन यदि ऐसा ट्रायंगल है कि जो पूछा है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, तो हम क्या करेंगे, फिर भी 3 लेंथ फाइंड करेंगे और उसमें सबसे बड़ी जो साइड रहेगी उसका स्क्वायर करेंगे. सपोज मान लीजिए कि AC सबसे बड़ी साइड है तो वी डू AC स्क्वायर एंड रिमेनिंग 2 साइड का स्क्वायर का सम ऐड करेंगे तो हो गया. उससे क्या हो जाएगा कि यदि इक्वल आए तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल है. इवन आप राइट उसमें कौन सा 90 डिग्री का एंगल है वो भी पहचान पाएंगे. क्लियर? नाउ अनदर यूटिलिटी ऑफ दिस डिस्टेंस फार्मूला इज टू फाइंड द कोलिनियरिटी एंड नॉन कोलिनियरिटी. कोलिनियरिटी एंड नॉन कोलिनियरिटी में कैसे देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ. सपोज दिस A, B
and this C. These are collinear. Then what happen? यदि तीनों के तीनों कोलिनियर है तो ये समझो ए बी और ए बी सी और हमने ए सी फाइंड कर दिया, तो क्या मिलेगा कोलिनियरिटी रहे तो बड़ा जो लेंथ है मतलब ये ए सी, ये दोनों छोटे लेंथ के सम के बराबर रहेगा। यदि कोलिनियर है तो ऐसे रहेगा, और ऐसे रहा तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, ठीक है। और नॉन कोलिनियर रहा तो ए बी और बी सी का लेंथ जो है ए सी से हरदम ज्यादा रहेगा, मतलब ये दोनों जो है ये दोनों का लेंथ जो है ए सी से हरदम ज्यादा रहेगा। एंड मीन दैट इफ ए बी प्लस बी सी दैट इज इक्वल टू ए सी, मतलब लार्जर लेंथ छोटी लेंथ से के सम के बराबर रहा तो हम बोलेंगे दीज आर द this is what these points are the collinear points, means lies in the same line. किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। Anybody has got any doubt? हाँ हाँ बोलिए हाँ बोलिए। कोलिनियर और नॉन कोलिनियर देखिए आप समझ लीजिए कि फिर से समझा दे रहा हूँ। सपोज हम जनरल क्वेश्चन लेंगे, जैसे आप मान लीजिए कि ये ए बी जो है ये 7 सेंटीमीटर वाला है, ठीक है। ए बी 7 सेंटीमीटर है, यहाँ पे पी ले लिया, ये 3 सेंटीमीटर का ले लिया, तो ये कितने का रहेगा? पी भी कितने का रहेगा? ये कब पॉसिबल है? कब पॉसिबल है कि जब ये कोलिनियर है तभी ना। हाँ ये 7 है तो 7 है, ये 3 है तो ये 4 है, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि यदि आपको बड़ा लेंथ दिया है और 2 छोटे लेंथ दिए हैं और पूछे कि 3 पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे? 2 छोटे के सम करके देखेंगे बड़े के सम के बराबर है क्या, मतलब ये 3 + 4 7 आए तो कोलिनियर है। हाँ और यदि ऐसा दिया है कि ये 3 है और ये 4.5 है, हाँ और ये टोटल ए बी बोला है 7, दीज आर नॉट कोलिनियर, क्योंकि तब में कैसा हो जाएगा? ये 3 रहेगा, ये 4.5 रहेगा और ये तब में रहेगा 7। हाँ इनइक्वेलिटी से क्या बनता है? ट्रायंगल बनता है, और इक्वेलिटी से क्या बनता है? ये कोलिनियरिटी, मतलब ये 3 और 4.5 कोलिनियर नहीं रहेंगे जब ए बी 7 रहेगा, क्योंकि ये और इसकी सम कोलिनियर में इतनी 7 होना चाहिए, इसके लिए ये नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन में 3 + 4.5 ये पॉसिबल है, किसमें? ट्रायंगल इनइक्वालिटी में। सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, मीन्स ये दोनों की सम 7 से ज्यादा हो सकती है, तो ये ट्रायंगल बनेगा, लेकिन कोलिनियरिटी के लिए कंडीशन है। अभी किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं क्वाड्रिलेटरल। हाँ अभी नहीं है, हाँ क्योंकि अभी खाली हम थ्योरेटिकली बता रहे हैं, प्रॉब्लम बनाना स्टार्ट अभी किया नहीं हमने। प्रॉब्लम हम देखेंगे, जैसे अभी हमारे पास टाइम है। अभी हम बात करते, पहले जो बात की बता दे रहा हूँ। पहले बोला मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो आप 3 साइड फाइंड कर दिए, ए बी बी सी ए सी तीनों इक्वल है तो इक्विलैटरल, उसमें 2 इक्वल है, तीसरी इक्वल नहीं तो आइसोसेलेस, तीनों इक्वल नहीं है तो स्केलेन। दूसरा मैंने राइट एंगल ट्रायंगल के बताया, तीसरा कोलिनियरिटी के बारे में बताया। अभी हम बात करते क्वाड्रिलेटरल।